A very good evening to all of you. This is Dr. Sheetal Agrawal, practicing in Restore Health Polyclinic, Sector 9, उल्वे, नवी मुंबई। आज मैं आपके साथ जो है कुछ टेक होम पॉइंट्स डिस्कस करने वाली हूँ रिगार्डिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। सो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो है बहुत ही वास्ट टॉपिक है, लेकिन अभी इस वीडियो में जो हम एक बेसिक पॉइंट्स को क्लियर कर लेंगे जो लोगों में बहुत ज़्यादा जिसके बारे में मिसकॉन्सेप्शन है। तो नंबर 1 अगर मैं आपको बताती हूँ कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ये दोनों टर्म सुनने में और देखने में एक जैसी लगती हैं, लेकिन दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। ग्रोथ क्या है? ग्रोथ इज़ अ क्वांटिटेटिव मेजरमेंट ऑफ बेबी बॉडी जो हम बाहर से देख सकते हैं, ठीक है, जिसमें द बेस्ट एग्जाम्पल इज़ height and weight of a baby. Height can also be measured in numbers, weight can also be measured in numbers. Prior to 1 month you were looking quite short. Now after 1 month you have gained a bit of height, right? So this is growth of a baby which comes in numbers, जिसे हम बाहर से देख के बता पा रहे हैं। Next term is development. Development is the फिज़िकल मैच्योरेशन ऑफ बॉडी, जिसे हम देख नहीं सकते, हम महसूस कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो बॉडी के अंदर हो रहा है, ठीक है। द बेस्ट एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड डेवलपमेंट इज़ द मेंटल मैच्योरेशन। ओके, मेंटल मैच्योरेशन बेबीज़ के केस में, चिल्ड्रन के केस में हम कैसे देख सकते हैं? वेदर द बेबी इज़ अचीविंग डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स एट द स्पेसिफाइड एज और नॉट। ओके, फॉर एग्जाम्पल, if the normal age at which the baby stands is 1 year specified in books, and if the baby is actually doing the same at the age of 1 year, then it is shown that baby is achieving all the developmental milestones at the specified age. So this is developmental maturation of body. I hope now it is being clear to you that what is the difference between growth and development, right? Next I moves to the normal height and normal weight at the birth time. बर्थ के समय पेरेंट्स में जो है आजकल बहुत ज़्यादा एक क्यूरियोसिटी रहती है कि हमारे बच्चे का बर्थ वेट कितना था। वेट को लेके बहुत ही ज़्यादा पेरेंट्स कॉन्शियस रहते हैं, बिकॉज दे आर रियली, अपने बच्चे के लिए हर कोई कॉन्शियस ही रहता है। तो लेट मी टेल यू, द नॉर्मल वेट एट बर्थ इज़, for Indian baby it is 3 kg and around. Okay, so after 6 months, at the age of 6 months baby doubles his birth weight, right? At the age of 1 year baby triples his birth weight. At the age of 2 years baby quadruples, यानी 4 times of birth weight जो है वो 2 years की एज पे हो जाता है normally. For example, if the baby weighs 3 kg at birth, at 6 months it will be 6 kg. At 1 year it will be triple of birth weight. Triple कैसे? 3 multiply 3 is equal to 9 kg. At the age of 2 years it will be 4 times 3 multiplied by 4 is equal to 12 kg, right? So this is how the baby is gaining weight till the age of 2 years. And after the age of 2 years till 6 years baby is gaining weight at 2 kg per year. यानी हर एक साल में 2 kg वेट जो है बेबी गेन करेगा। ये कब तक होगा? टिल द एज ऑफ 6 years. ओके, सो 2 से 6 साल में 2 kg आप हर साल बढ़ाते जाइए। सो दिस विल कम आउट टू बी normal weight of the baby at the age of 6 years. After 6 years till puberty, baby will gain weight at the rate of 3 kg per year. ओके, पहले क्या था? 2 से 6 साल के बीच में क्या था? 2 kg गेन कर रहा था हर एक ईयर में। लेकिन अब जो है 6 से पबर्टी तक, यानी पबर्टी की एज कोई डिफ़ाइन की गई नहीं है, बिकॉज हर एक बच्चे में पबर्टी 6 महीने पहले, किसी में 1 साल बाद वैसा हो रहा है। तो ऑन एंड एवरेज टिल द एज ऑफ 16 years बेबी का जो है पबर्टी अचीव हो जाता है बच्चे का। तो टिल दैट एज यू कैन ऐड 3 kg पर ईयर अप टू पबर्टी। Okay, so this is how the weight grows. Now comes to the height.
the normal height at birth is 50 centimeter, right? So at birth it is 50 centimeter, at 1 year it is 75 centimeter, at 2 years it is 87 to 90 centimeter. Okay, at birth it is 50 centimeter, at 1 year it is 75 centimeter, at 2 years it is 87 centimeter, and from 2 years till puberty you can add 6 centimeter per year height. ओके यानी 1 साल में 6 सेंटीमीटर हाइट जो है आप ऐड कर सकते हो और वो कैलकुलेट करके आप उसका बच्चे का जो है उसकी एज के अकॉर्डिंग हाइट आप निकाल सकते हो. सो दिस इज़ हाउ द हाइट ग्रोज. तो वेट एंड हाइट हमारा हो गया और मुझे लगता है कि आप सभी को ये जो कन्फ्यूजन्स थी हाइट एंड वेट में कि किस एज में कितना कैलकुलेट होना चाहिए वो आपको समझ में आया ही होगा. नेक्स्ट मूव्स टू द हेड सर्कम्फरेंस. ये जो हमारा हेड है इसको हम इंची टेप से मेजर करते हैं कि हेड सर्कम्फरेंस कितना होना चाहिए, राइट? सो हेड सर्कम्फरेंस नॉर्मली एट बर्थ इज 35 सेंटीमीटर. Okay, it is 35 centimeter, and at birth the head circumference is more than the chest circumference. Okay, जो हेड का सर्कम्फरेंस है वो चेस्ट के सर्कम्फरेंस से ज़्यादा होता है at birth, right? So at the age of 1 year the chest circumference will be more than the head circumference. 1 साल की एज में जो चेस्ट का आपका सर्कम्फरेंस है बेबी का वो बढ़ जाता है हेड सर्कम्फरेंस से, जो कि बर्थ टाइम पे हेड सर्कम्फरेंस से कम था. ओके, गॉट इट. सो द क्रूशियल पैरामीटर्स टू असेस द बेबीज ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज हाइट एंड वेट, right? And if I talk about the development, you can assess the developmental milestones like at what age baby stands, at what age baby starts walking, at what age baby takes his first step, at what age he starts climbing up the stairs, like this. So there are number of milestones, social and developmental milestones, and then language milestones are there. तो हम ये आने वाली वीडियोस में हैं ये सभी डेवलपमेंट्स माइलस्टोन्स को हम क्लियर करेंगे. नेक्स्ट कम्स टू द टूथ इरप्शन. टूथ इरप्शन जो है सबसे पहले स्टार्ट होती है 5 to 9 मंथ्स की एज में, जो फर्स्ट टूथ है बेबी अपना निकालता है. और होता क्या है कि देर आर 2 टाइप्स ऑफ टीथ. One is milk teeth, also known as temporary teeth or deciduous teeth, and these are 20 in number. Another one is permanent set of teeth which is 32 in number. Okay, तो जो टेम्परेरी टीथ हैं, जो मिल्क टीथ हैं या जिन्हें हम डेसिडुअस टीथ भी कहते हैं, ये जो है 2.5 ईयर की एज तक जो है सभी 20 के 20 जो है आ जाते हैं. ठीक है, उसके बाद में जो है धीरे धीरे वो टूटना शुरू होते हैं एंड देन विल रिप्लेस्ड बाय परमानेंट टीथ. सो दिस इज़ अ वेरी शॉर्ट वीडियो ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो बहुत देर से मैं आपके साथ लेना चाह रही थी बिकॉज बहुत सारी क्वेरीज आ रही थी पेरेंट्स के मेरे पास रिगार्डिंग दिस हाइट एंड वेट और रिगार्डिंग द टर्मिनोलॉजी डेफिनेशंस एंड ऑल. आई होप आपको बहुत सारे डाउट्स क्लियर हुए होंगे और अगर इनकेस कुछ क्वेरीज रहती हैं तो आप चैट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं. then I will definitely answer your queries. And thank you so much for watching more such videos. Please keep subscribing my channel Restore Polyclinic Sector 9 Ulve, and thank you so much.